السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں درخشا عرفان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، موسلادھار بارش سے لاہور پانی پانی ہو گیا، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ لال پل میں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، مکین گھروں میں میسور ہو کر رہ گئے ہیں، کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں زاہد عابد سے۔ زاہد بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور شہر میں بارش کا سلسلہ صبح سے جاری ہے۔ اس وقت بھی ہلکی بارش ہو رہی ہے، آسمان پر بادل تاحال موجود ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آج سارا دن اسی قسم کا صورتحال رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس بارش جو کہ آج کافی زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے، گزشتہ 3 روز کے مقابلے میں پہلے جو بارش ہوتی رہی ہے وہ تقریباً 60 سے 70 ملی میٹر ہوتی رہی ہے، لیکن آج 150 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی ہے اور اوسطاً تقریباً 110 ملی میٹر بارش پورے شہر میں ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہمیشہ پانی کھڑا ہوتا ہے، پانی جمع ہوتا ہے، اسی قسم کی صورتحال آج بھی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت بھی ہم لال پل پر موجود ہیں، یہاں پر محمد پورہ کا علاقہ ہے، وہ اسی قسم کا منظر پیش کر رہا ہے جیسا کہ ہر دفعہ پیش کرتا ہے۔ کیمرے کی آنکھ سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ یہ رہائشی اور کمرشل ایریا ہے، یہاں پر دکانیں بھی ہیں، یہاں پر گھر بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گلی میں اس وقت کوئی شخص موجود نہیں ہے کیونکہ اس پانی سے کوئی گزر نہیں سکتا۔ یہاں پر واسا کے لوگ موجود ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر پانی کو جلد از جلد اس کا نکاس کیا جا سکے، لیکن اس کی دوسری طرف جو صورتحال ہے کہ یہاں پر جو رہائشی ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ پانی نکلے تاکہ ان کا معمولات زندگی بحال ہو سکیں۔ مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی صورتحال ہے، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر بارش کے اثرات نظر نہیں آتے، لیکن اکثر علاقے ایسے ہیں جہاں پر بارش کی وجہ سے پانی کا جو نکاسی آب ہے وہ مناسب نہ ہونے کی وجہ سے مسائل موجود ہیں۔ واسا حکام کی جانب سے کوشش ہو رہی ہے، واسا حکام کب تک کامیاب ہوتے ہیں یہ ان کی کوششوں پر ہے۔ ان کے ساتھ مشینیں بھی یقینی طور پر یہاں پر موجود ہیں جس سے کوشش کیا جا رہا ہے کہ پانی نکالا جا سکے، لیکن جس وقت بارش ہوتی ہے تو لوگوں کو ایک دفعہ ضرور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ صورتحال آج بھی موجود ہے۔ جی ٹھیک ہے زاہد، بہت شکریہ۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں 182 ملی میٹر کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ لکشمی چوک میں 3 فٹ تک بارشی پانی جمع، نظام زندگی مفلوج ہو گیا، کاروباری سرگرمیاں معطل، علاقہ مکین گھروں میں میسور ہو کر رہ گئے ہیں۔ مزید کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ زین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں صبح 5:20 پر بارش کا آغاز ہوا اور اس کے بعد مون سون کے بادل خوب جم کر برسے، جس کے بعد لاہور کی مرکزی شاہراہیں اور نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ اس بارش میں بھی ہر دفعہ ڈوبنے والا لکشمی چوک ایک مرتبہ پھر ندی نالے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، کاروباری مراکز بند ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ لاہور میں سب سے زیادہ بارش نصر ٹاؤن کے علاقے میں 182 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ لکشمی چوک کا علاقہ ہے جہاں پر 141 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ 6 گھنٹے مسلسل بارش ہونے کے بعد اب بارش کا سلسلہ تو تھم چکا ہے، لیکن ابھی تک بارشی پانی کا نکاس ممکن نہیں ہو سکا۔ لکشمی چوک کو جو آنے والے راستے ہیں وہاں پر واسا کے ٹرک لگا کر ان کو گزرنے کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ واسا کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو لاہور کے نشیبی علاقے ہیں ان کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے واٹر ٹینکس کو فعال کر دیا گیا ہے۔ جو ڈسپوزل سٹیشنز ہیں وہ مکمل استعداد کار کے ساتھ چلائے جا رہے ہیں، لیکن آج ہونے والی بارش کے بعد جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پر بارشی پانی جمع ہو چکا ہے، جس کا نکاس ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ شہر میں بارش کے دوران مختلف مقامات پر چھت گرنے سے 2 شہری جاں بحق، 8 زخمی ہو گئے۔ نشتر کالونی میں چھت گرنے سے 50 سالہ بشیر جاں بحق ہوا۔ ٹکسالی گیٹ چھت گرنے سے 60 سالہ راشدہ بی بی جان کی باسی ہار گئی۔ اچرا گنج بخش روڈ پر بھینسوں کے باڑے کے چھت گرنے سے 32 سالہ رفاقت اور 45 سالہ احسن زخمی ہوئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں شہر میں بارش کے دوران مختلف مقامات پر چھت گرنے سے 2 شہری جاں بحق ہوئے اور 8 زخمی ہوئے۔ نشتر کالونی میں چھت گرنے سے 50 سالہ بشیر جاں بحق ہو گیا۔ ٹکسالی گیٹ چھت گرنے سے 60 سالہ راشدہ بی بی جان کی باسی ہار گئی۔ اچرا گنج بخش روڈ پر بھینسوں کے باڑے کی چھت گرنے سے 32 سالہ رفاقت اور 45 سالہ احسن زخمی ہوئے۔ نشتر کالونی میں چھت گرنے سے 50 سالہ بشیر جاں بحق ہوئے۔ ٹکسالی گیٹ چھت گرنے سے 60 سالہ راشدہ بی بی جان کی بازی ہار گئی۔ شہر میں بارش کے دوران مختلف مقامات پر چھت گرنے سے 2 شہری جاں بحق ہوئے اور 8 شہری زخمی ہوئے ہیں۔
इचरा गंज बख्श रोड पर भैंसों के बाड़े की छत गिरने से 32 साला रफाकत और 45 साला एहसन जख्मी हुए हैं। निश्तर कॉलोनी में छत गिरने से 50 साला बशीर जांबक हुआ और टेक्साली गेट छत गिरने से 60 साला राशिदा बीबी जान की बाजी हार गई। शहर में बारिश के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर छत गिरने से 2 शहरी जांबक और 8 जख्मी हुए हैं। इचरा गंज बख्श रोड पर भैंसों के बाड़े की छत गिरने से 32 साला रफाकत और 45 साला एहसन जख्मी हुए। निश्तर कॉलोनी में छत गिरने से 50 साला बशीर जांबक हुआ और टेक्साली गेट छत गिरने से 60 साला राशिदा बीबी जान की बाजी हार गई है। शहर में बारिश के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर छत गिरने से 2 शहरी जांबक और 2 शहरी जख्मी हुए हैं। निश्तर कॉलोनी में छत गिरने से 50 साला बशीर जांबक हुआ है। इचरा गंज बख्श रोड पर भैंसों के बाड़े की छत गिरने से 32 साला रफाकत और 45 साला एहसन जख्मी हुए हैं। मज़ीद जान लेते हैं जैन अली से। जैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद जहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी मकबूज हुआ, वहीं पर कच्चे मकानों की छत गिरने से मुख्तलिफ हादसात जो है वो रुनमा हुए हैं, जिसके नतीजे में 8 शहरी जख्मी जबकि 2 जांबक हुए हैं। गंजबख्श रोड पर भैंसों के बाड़े के छत गिरने से 32 साला रफाकत और 45 साला एहसन जख्मी हुए, जबकि निश्तर कॉलोनी छत गिरने से 42 साला नबीला, 22 साला ताहिरा और 50 साला बशीर जो है वो जांबक हुए। अंदरून टक्साली गेट छत गिरने से 60 साला राशिदा बीबी जख्मी हुई, जबकि रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 25 साला बुशरा, 45 साला अफजल, 4 साला अब्दुल वसीम जो है वो जख्मी हुए, जबकि 2 साला ज़ैनब जो है वो जांबक हुई। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पे हादसा हुए, जिसके नतीजे में जो है वो अब तक 8 जो है वो जख्मी हैं, जबकि 2 जांबक जो है वो बहुत शुक्रिया जैन। कमिश्नर जैद बिन मकसूद कहते हैं कि तमाम तहसीलों के एसीज वासा कॉरपोरेशन अमला पांडिंग एरियाज में नकासियाब के लिए रद्द अमल थे। एमरजेंसी कैंप्स फाल हैं। ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवा रखे। शहरियों को ज़रूरत पर मुतबादिल रास्ते दिए जाएं। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से कमिश्नर जैद बिन मकसूद कहते हैं कि तमाम तहसीलों के एसीज वासा कॉरपोरेशन अमला पांडिंग एरियाज में नकासियाब के लिए रद्द अमल दें। एमरजेंसी कैंप्स फाल हैं। ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर ट्रैफिक रवां रखे और शहरियों को ज़रूरत पर मुतबादिल रास्ते दिए जाएं। आपको अहम खबर के हवाले से बता रहे हैं कमिश्नर जैद बिन मकसूद कहते हैं कि तमाम तहसीलों के एसीज और वासा कॉरपोरेशन अमला पांडिंग एरियाज में नकासियाब के लिए रद्द अमल दें। एमरजेंसी कैंप्स फाल हैं। ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवा रखे। शहरियों को ज़रूरत पर मुतबादिल रास्ते भी दिए जाएं। कमिश्नर जैद बिन मकसूद कहते हैं कि तमाम तहसीलों के एसीज वासा कॉरपोरेशन अमला पांडिंग एरियाज में नकासियाब के लिए रद्द अमल दें। एमरजेंसी कैंप्स फाल रहे। ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर मुतबादिल रास्ते भी दिए जाएं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। जारी है और इसी सिलसिले में मुझ पर बहुत ज्यादा मकसूद ने हदायत जारी की है कि लाहौर के इलाके में पानी वाला तालाब में 123 बजे हमें बारिश रिकॉर्ड होती है, जबकि तेज बारिश का सिलसिला जारी है। अगर इस तरह से कमिश्नर का कहना है कि तमाम तहसीलों के वासा और कॉर्पोरेशन अमला जो है बॉन्डिंग एरिया में काफी रास्ते की रद्द अमल दे। इस वजह से शहरियों को तमाम पॉइंट से बारिश की बात की जा रही है। इससे एमरजेंसी कैंप है, इसके साथ ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर ट्रैफिक रवा रखे। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कहाँ कितनी बारिश हुई है। अदादोशुमार जारी। निश्तर टाउन में सबसे ज़्यादा बारिश 182 मिलीमीटर रिकॉर्ड, जेल रोड पर 119, एयरपोर्ट पर 84.5, गुलबर्ग में 141 मिलीमीटर बारिश हुई है। लक्ष्मी चौक 141, मुगलपुरा 127, ताजपुरा में 140, पानी वाला तालाब में 185 बारिश रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद जान लेते हैं जैनुल आबिदीन से। जैन, अपडेट कीजिएगा। शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। सुबह 5:20 पर शुरू होने वाली बारिश 11:10 तक जारी रही और 5 घंटे 50 मिनट तक होने वाली इस मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियां, सड़कें, तालाब और नदी नाले का मंजर पेश करती रहीं। ताहम रवा बर्स मानसून के जो अभी तक स्पेल बरसे हैं उसमें सबसे ज्यादा और सबसे तेज बारिश आज रिकॉर्ड की गई है। जो अदादोशुमार जारी किए गए उसके मुताबिक निश्तर टाउन और गार्डन टाउन का इलाका है जहां पर अभी तक सबसे ज्यादा 182 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि महकमा मौसमियात और PDMA की तरफ से आज के दिन में ही मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है।
शहर के दीगर इलाकों की सूरत हाल पर नजर दौड़ाई जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने मिलीमीटर में सेंचुरी मुकम्मल की, जिसमें जेल रोड का इलाका है जहां पर 124 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड अभी तक की जा चुकी है। एयरपोर्ट के इलाकों में 84.5, जबकि गुलबर्ग में 153 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह लक्ष्मी चौक में 143, अपर माल में 135 और मुगलपुरा में 134 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा में 140, चौक नाखुदा और शुमाली लाहौर के इलाकों में 133 मिलीमीटर, जबकि अंदरून शहर के इलाका पानी वाला तालाब में 175 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फरखाबाद और शादरा के इलाकों में भी मानसून के बादल खूब जमकर बरसे और फरखाबाद के इलाके में 155 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी में 128, अलामा इकबाल टाउन के इलाकों में 181, समनाबाद में 149, जोहर टाउन में 137 और कुर्तुबा चौक में 151 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ताहम शहर लाहौर में औसतन बारिश का रिकॉर्ड देखा जाए तो अभी तक 144 मिलीमीटर औसतन बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इस बारिश के बाद नशेबी इलाके तो जेरे आम हैं, जहां से बारिशी पानी के निकास के लिए कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन वासा की तरफ से जो निकासी याब की रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक अब तक की होने वाली बारिश के बाद जीपीओ चौक, नाबा रोड और रेलवे स्टेशन को से निकासी याब ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। ये वासा हुकाम की तरफ से रिपोर्ट दी जा रही है। इसके अलावा रसूल पार्क, शमा रोड, टिक्का चौक, जोहर टाउन, बाटी गेट, शाहजमाल, ताजपुरा और वहादत रोड को भी बारिशी पानी से क्लियर कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी लाहौर की मरकजी और सेकेंडरी शाहराहों पर बारिशी पानी मौजूद है और खास तौर पर निचली इलाकों से बारिशी पानी का निकास मुमकिन नहीं हो सका, जिसकी वजह से बेशतर इलाकों में निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है और लोग अपने घरों में महसूर हैं। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश के बायस अहम शाहराएं और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। बारिशी पानी जमा होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर की अहम शाहराएं नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है सामिया सईद ने। मज़ीद जान लेते हैं। सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ताहाल भी बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस जहां पर मौसम खुशगवार हो गया है, वहां पर यह भी देखा जा रहा है कि शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक बसें भी जो हैं वो काम करना मुकम्मल तौर पर छोड़ गई हैं और यहाँ पर सड़कों पर मौजूद है। ये सूरत हाल शहर लाहौर में देखी जा रही है और मुसलसल बारिश जो है वो बरस रही है। कहीं हल्की बारिश हो रही है तो कहीं तेज़ बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता मैं इस वक्त करतवा चौक पर मौजूद हूँ और ये देखा जा रहा है कि दोनों तरफ जो है वो यहाँ पर पानी ही दिखाई दे रहा है। आज सड़कें जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। शहर की अहम शाहराएं हो या नशेबी इलाके, सभी जो हैं वो पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर पानी इतना मौजूद है कि 2 से 3 फुट जो पानी है वो हर जगह पर मौजूद है। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम है। मामलात ज़िंदगी जो है वो आज मफलूज होकर रह गया है, मगर यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है जो पानी की निकासियाब का अमल शुरू कर सके। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि 13 जुलाई तक वक्फे वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि यहाँ पर शहरी भी जो हैं वो ये शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब्रे रहमत बरसी है मगर जहमत बन गई है। ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की निकासियाब ऑपरेशन की मुसलसल मॉनिटरिंग। शहर में ट्रैफिक की रवानी के लिए वार्डन्स और अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। इलामा इकबाल टाउन और निश्तर टाउन से हंगामी बुनियादों पर निकासियाब का इंतज़ाम करने का हुक्म भी दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, बताइएगा। देखिए दरअसल पंजाब हुकूमत के एलामिया के मुताबिक लाहौर में तकरीबन 8 घंटे बारिश का तारीखी स्पेल और औसतन 136 मिलीमीटर नया रिकॉर्ड बन गया और वासा और दीगर मुतल्लिका अदारे पूरी तरह मुतहरिक हैं और सरगर्म अमल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की निकासियाब की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। अलामा इकबाल टाउन और निश्तर टाउन से हंगामी बुनियादों पर निकासी का इंतजाम करने की हदायत की है। सुबह 5 बजे से जारी मूसलाधार बारिश से ज़ेरे-आब आने वाले इलाकों से पानी का निकासी जारी है और वासा की टीमें और अफसरान फील्ड में मौजूद हैं। ये पंजाब हुकूमत की जानिब से बताया जा रहा है। ये भी कहना है कि बिजली की बार बार बंदी से निकासियाब में आने वाली रुकावट दूर करने के लिए कोशिश है।
वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ की शहर भर में ट्रैफिक की रवानी के लिए वार्डन और अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हदायत की है और बारिश के बावजूद किसी भी रोड पर ट्रैफिक बाहर रखने के लिए इक़दाम करने का हुक्म दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 178 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। इकबाल टाउन डिवीजन और पानीवाला तालाब के इलाकों में 175 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। इंतजामिया, PDMA और दीगर मुतलका अदारे मुसलसल सरगर्म अमल है। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। चुबुर्जी के करीब PNT कॉलोनी से मलिका नाले की दीवार टूट गई। बारिश और गंदे नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया। घरों में पानी जमा होने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। लाहौर में जो आज मॉनसून के मूसलाधार बारिश हुई उसके जो नुकसानात हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं कि ये बुर्जी के करीब इलाका है PNT कॉलोनी, जहाँ से मरकजी नाला गुजर रहा था और आज होने वाली बारिश के बाद शफाफियत के दावों को ये बारिश भी बहा कर ले गई और इस नाले की दीवार टूट गई। ये मरकजी ड्रेन की दीवार टूटने की वजह से हजारों क्यूसिक जो गंदा पानी और बारिश का पानी है वो PNT कॉलोनी और बुर्जी के इलाकों में इस वक्त पहुंच चुका है और ये गंदा पानी लोगों के घरों में भी दाखिल हो चुका है। इस वक्त PNT कॉलोनी में अर्बन फ्लडिंग के जो खतरात हैं वो मंडलाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि लोगों के घरों में 2 से 3 फीट तक बारिशी पानी जमा हो चुका है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती इदारों की हरदर्मी का ये आलम है कि अभी तक बुर्जी के इलाका PNT कॉलोनी से निकासी आब के लिए और इस दीवार टूट चुकी है यहाँ पर बंद बांधने के लिए किसी भी तरह की इमदादी सरगर्मियां शुरू नहीं ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। और वक्त हुआ है ब्रेक का। उससे पहले ब्रेक के बाद आपको बताएं, शहर में होने वाली बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। लेस्को के 260 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद। मूसलाधार बारिश के बायस ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत की भी भरमार। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने मानसून बारिशों के पेश नज़र फील्ड स्टाफ को हाई अलर्ट कर दिया है। शहरियों को बिजली के खंभों और तारों से दूर रहने की हिदायत भी की गई हैं। मज़ीद जान लेते हैं फ़ाहद अमीन से। फ़ाहद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम भी पूरी तरह मुतासिर हुआ है। बारिश के बाद लेस्को के 260 से ज़ायद फीडर जो है वो ट्रिप कर गए हैं। फीडर ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाकों में इस वक्त जो है वो बिजली बंद है। ज्यादा मसला जो शहरियों को आ रहा है वो ट्रांसफार्मर जलने का आ रहा है, क्योंकि बारिश के बायस ट्रांसफार्मर जलने की जो है वो शिकायत में जो है बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ जो इंफरादी शिकायत है उनकी भी परवार है। लेस्को काम का कहना है कि बारिश के रुकते ही बिजली की बहाली का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है और चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की जानिब से जो है वो तमाम फील्ड अमले को जो है वो हाईलाइट कर दिया गया था और जो तमाम आला अफसरान है वो इस वक्त लेस्को के कंट्रोल रूम में मौजूद है और सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ताहम दूसरी जानिब जो लेस्को का हमला है कि बारिश के बायस मुख्तलिफ मुकामात पर पानी जमा है और गलियां और मोहल्ले जो है वो इस वक्त नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। लेस्को के हमले को बिजली की बहाली में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है फ़ाहद, बहुत शुक्रिया। शहर में मुसलसल बारिश के पेश नज़र वासा और ज़िला इंतज़ामिया की टीमें फील्ड में मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान कहती हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक तमाम अफसरान और अमला मुतहरिक है। लाहौर के तमाम अंडरपासेस क्लियर हैं। नशेबी इलाकों से अमला पानी निकालने में मसरूफ़ है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में नशेबी इलाकों से भी निकासियाब ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। आपको बता रहे हैं, शहर में मुसलसल बारिश के पेश नज़र वासा और ज़िला इंतज़ामिया की टीमें फील्ड में मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का ये बयान सामने आया है। वो कहती हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक तमाम अफसरान और अमला मुतहरिक है। लाहौर के तमाम अंडरपासेस क्लियर हैं। नशेबी इलाकों से अमला पानी निकालने में भी मसरूफ़ है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में नशेबी इलाकों से भी निकासियाब ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक तमाम अफसरान और अमला मुतहरिक है। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रसा से। हसन, बताइएगा। लेकिन रक्षा और सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने वादे किया है कि पंजाब हुकूमत जो है
اس کے حوالے سے بھرپور طریقے سے اقدامات کر رہی ہے. انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ پنجاب حکومت نے کے جو متعلقہ محکمے ہیں وہ اس حوالے سے فیلڈ میں بڑی بہترین طریقے سے متعلق ہیں اور اقدامات کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے کرتبہ چوک، مار روڈ، ایمان اقبال روڈ، نظام لکشمی چوک، مین بولیوارڈ، برکت مارکیٹ، پیپر سیریا، ایمرجنسی، ان تمام جو ہے مقامات کا تفصیلی طور پہ جائزہ بھی لیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم معاشی جو ہے وہ تمام تر جو ہے وہ معاملات کی مانیٹرنگ بھی کر رہی ہے. صوبائی وزیر اطلاعات ازما مخاری کا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جو ہے مسلسل بارشوں کے حوالے سے جو ہدایت جاری کی کہ اس میں سب کی سرمد درآمد جاری ہے. لاہور میں گزشتہ 5 سے 6 گھنٹوں میں مسلسل بارش جاری رہی. باسا اور ضلع انتظامیہ کی تمام ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم معاشی کی ہدایت کے مطابق. ٹھیک ہے حسن، بہت شکریہ. صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا بارش کے دوران مختلف علاقوں کا دورہ. گلبرگ کے اضافی اسٹیڈیم، فیروزپور روڈ، مال روڈ اور لکشمی چوک پر نکاسی آب آپریشن کا جائزہ لیا. ایم ڈی واسا کو نشیبی علاقوں میں نکاسی آب کے لیے زیر زمین واٹر ٹینکس استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہیں. بلال یاسین نے واسا کنٹرول روم سے ڈسپوزل اسٹیشنز اور فیلڈ آپریشن کی بھی نگرانی کی ہے. مزید جان لیتے ہیں زین العابدین سے. زین، اس دورے کے بارے میں بتائیے گا. شہر لاہور میں تقریباً 6 گھنٹے تک مسلسل کا سلسلہ جاری رہا، جس کے بعد صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے بارش کے دوران شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. اس موقع پر سیکریٹری ہاؤسنگ نور المین مینگل، ڈی جی واسا پنجاب طیب فرید، ایم ڈی واسا لاہور غفران احمد بھی ان کے ہمراہ تھے. گلبرگ، قذافی اسٹیڈیم، فیروزپور روڈ، مال روڈ اور لکشمی چوک کے علاقوں میں نکاسی آب کے عمل کا جائزہ لیا. اس موقع پر ڈی جی واسا پنجاب کو تمام بڑے شہروں میں مشینری مکمل فعال رکھنے کی ہدایات جاری کی گئی. اس موقع پر بلال یاسین کا کہنا تھا کہ موسمی کے کسی بھی مقام پر بارش عمومی حالات سے زیادہ ہو سکتی ہے. موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث جو اس وقت نکاسی آب کی صورتحال ہے اس کے اوپر خصوصی طور پر توجہ دے رہے ہیں. ایم ڈی واسا لاہور کو نشیبی علاقوں میں نکاسی آب کے لیے زیر زمین واٹر ٹینکس کو ہر ممکن استعمال یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے. وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے واسا کنٹرول روم سے ڈسپوزل اسٹیشن اور فیلڈ آپریشن کی بھی نگرانی کی. بلال یاسین کا کہنا تھا کہ نکاسی آب سے متعلق شکایات کے اندراج اور بر وقت تدارک کے لیے عمل درآمد جو رپورٹس ہیں ان کو بھی پیش کیا جائے. پنجاب کے تمام واساز کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں. بہت شکریہ زین. سیکٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل اور کمشنر زید بن مقصود کا مختلف مقامات کا دورہ. کرتبہ چوک، مال روڈ، مزنگ، لکشمی چوک، برکت مارکیٹ میں نکاسی آب آپریشن کا جائزہ لیا. مونسون ایمرجنسی کیمپس کا معائنہ کیا. کمشنر کی نشیبی علاقوں سمیت تمام مرکزی شاہراہوں کو جلد کلیئر کرنے کی ہدایات. مزید جان لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے. عمران، اس دورے کے بارے میں بتائیے گا. عمران سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں سیکٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل اور کمشنر زید بن مقصود کا مختلف مقامات کا دورہ. کرتبہ چوک، مال روڈ، مزنگ، لکشمی چوک، برکت مارکیٹ میں نکاسی آب آپریشن کا جائزہ لیا گیا اور مونسون ایمرجنسی کیمپس کا بھی معائنہ کیا گیا. کمشنر کی نشیبی علاقوں سمیت تمام مرکزی شاہراہوں کو جلد کلیئر کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہیں. سیکٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل اور کمشنر زید بن مقصود کا مختلف مقامات کا یہ دورہ. کرتبہ چوک، مال روڈ، مزنگ، لکشمی چوک، برکت مارکیٹ میں نکاسی آب آپریشن کا جائزہ لیا گیا. مونسون ایمرجنسی کیمپس کا بھی معائنہ کیا گیا ہے. کمشنر کی نشیبی علاقوں سمیت تمام مرکزی شاہراہوں کو جلد کلیئر کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہیں. سیکٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل اور کمشنر زید بن مقصود کا مختلف مقامات کا دورہ. کرتبہ چوک، مال روڈ، مزنگ، لکشمی چوک، برکت مارکیٹ میں نکاسی آب آپریشن کا جائزہ لیا گیا ہے. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش. پولیس افسران اور اہلکار الرٹ ہے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس فورس کو امدادی سرگرمیوں میں شرکت کی ہدایت بھی کی گئی ہے. پنجاب پولیس پی ڈی ایم میں ضلع انتظامیہ ریسکیو اداروں سے رابطے میں رہے. وارڈن شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے میں کردار ادا کرے. سپروائزری افسران بارش زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں مانیٹر کریں. مزید جان لیتے ہیں مدثر حسین سے. مدثر، بتائیے گا. جی بالکل، لاہور سے پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. اس وجہ سے ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس فورس کو امدادی سرگرمی میں بھرپور شرکت کرنے کی ہدایت جاری کی ہے. اس وجہ سے ڈاکٹر عثمان انور کا یہ کہنا ہے کہ پولیس افسران اور اہلکار بارش سے متاثرہ علاقوں میں مزید مستعد ہو کر ڈیوٹی پر انجام دیں. ٹریفک وارڈن ہمشہروں پر ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں
पुलिस अफसरान बाज़ इलाकों में इमदादी सरगर्मी की खुद जो है वो मॉनिटरिंग करें। जिसमें आपका मजीद कहना था कि पंजाब पुलिस रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मी के हवाले से PDM में जिला इंतजामिया रेस्क्यू ड्राइवर से मुसलसल राब्ते में रहें। पंजाब पुलिस के कंट्रोल रूम से भी बारिश से होने वाली नुकसानात की तफसीलात जो है वो हासिल की जा रही है। जिसमें आपका मजीद कहना था कि पुलिस अफसरान और एहलकार लाहौर समेत बारिश से मुतासर हिस्सों से निकासी आप में वासा और दीगर अदालों की मदद करें। बारिश की वजह से मुतासरा शहरियों को रेस्क्यू करने में मुतल्लिका अदालतों की भरपूर जो है वो जाने की मामलत की जा रही है। और जिसमें आपका मजीद कहना था कि मजीद बारिश की तानात के पेश नज़र पुलिस अफसरान और एहलकार इंतहाई अलर्ट रहें, किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी जो है वो रिस्पॉन्ड करें। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। LD रिकॉर्ड रूम में भी बारिशी पानी दाखिल, सैकड़ों फाइलें ज़ाया होने का खदशा। LD मुलाज़मीन फाइलें खुश करने में मसरूफ़। LD की गफलत वाटर प्रोफिलिंग का फुकदान है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से। LD रिकॉर्ड रूम में भी बारिशी पानी दाखिल हो गया है, सैकड़ों फाइलें ज़ाया होने का खदशा। LD मुलाज़मीन फ़ाइलें खुश करने में मसरूफ़ हैं। LD रिकॉर्ड रूम में भी बारिशी पानी दाखिल हो गया है और सैकड़ों फ़ाइलें ज़ाया होने का खदशा भी सामने आया है। LD मुलाज़मीन फ़ाइलें खुश करने में मसरूफ़ है। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइएगा। शहर लाहौर में होने वाली आज बारिश के बाद जो तबाहकारियां हैं अब वो सामने आना शुरू हो गई हैं कि आज होने वाली बारिश के बाद LDA का रिकॉर्ड रूम जो कि तहखानों में बनाया गया है अब वहां पर भी बारिशी पानी दाखिल हो गया है। ये बारिशी पानी दाखिल होने की वजह से LDA की सैकड़ों फाइलें तबाह होने का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। अथॉरिटी की जानिब से नाकस इंतजामात और वाटर प्रूफिंग ना होने की वजह से ये रिकॉर्ड मुतासिर हो रहा है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि LDA रिकॉर्ड रूम में दहाइयों पुराना सरकारी रिकॉर्ड है और फुटेज में भी देखा जा सकता है कि किस तरह ये सरकारी रिकॉर्ड पानी में तैर रहा है, जबकि अफसरान इस हवाले से बेखबर हैं। अलॉटमेंट और कानूनी दस्तावेजात इस बारिशी पानी में ज़ाया होने का अंदेशा है। दूसरी जानिब LDA एहलकार इस रिकॉर्ड को खुश करने में मसरूफ हैं। ज़राए के मुताबिक नक्शा अलॉटमेंट मंजूरी की फाइलें पानी की वजह से मुतासर हुई हैं। LDA की मुजरमाना गफलत का ये खमियाजा मुस्तकबिल करीब में जिन लोगों की फाइलें हैं और जो LDA के स्टेक होल्डर्स हैं उनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। DG-PDM में इरफान अली काठिया की सुबह भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। PDM में कंट्रोल रूम में सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी है। मज़ीद जान लेते हैं सामिया सईद से। सामिया बताइएगा। सामिया अगर सुन पा रही हैं तो बताइएगा। आपको बताएं लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश हुई। DG-PDM में इरफान अली काठिया की सुबह भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। PDM में कंट्रोल रूम में सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी है। DG-PDM में इरफान अली काठिया की सुबह भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश हुई है। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। सामिया बताइएगा। बारिश के बायस एक्साइज ऑफिस में पहुंचना भी नामुमकिन हो गया है। रीजन बी की इमारत के बाहर बारिश का पानी जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा एक्साइज की जानिब से हाल ही में नई जगह पर इमारत किराए पर ली गई थी। शहरियों का कहना है कि पहले पार्किंग के मसाइल थे, अब बारिशी पानी ने ऑफिस पहुंचना मुश्किल बना दिया है। आपको बता रहे हैं बारिश के बायस एक्साइज ऑफिस में पहुंचना भी नामुमकिन हो गया है। रीजन बी की इमारत के बाहर बारिश का पानी जमा हो गया है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा एक्साइज की जानिब से हाल ही में नई जगह पर इमारत किराए पर ली गई थी। शहरियों का कहना है कि पहले पार्किंग के मसाइल थे, अब बारिशी पानी ने ऑफिस पहुंचना मुश्किल बना दिया है। रीजन बी की इमारत के बाहर बारिश का पानी जमा हो गया है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा एक्साइज की जानिब से हाल ही में नई जगह इमारत किराए पे ली गई थी। बारिश के बायस एक्साइज ऑफिस में पहुंचना भी नामुमकिन हो गया है। और मूसलाधार बारिश से अस्पताल भी ज़ेर आब। जना और जनरल अस्पताल के दाखिली रास्तों पर बारिश का पानी जमा। मरीजों और लाहिकीन को अस्पताल आने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जना अस्पताल के कई कमरों की छतों से बारिशी पानी टपकने लगा है। आपको बता रहे हैं अहम
खबर के हवाले से शहर में मूसलाधार बारिश हुई है और बारिश से अस्पताल भी ज़ेरे आब आ गए हैं। जिना और जनरल अस्पताल के दाखिली रास्तों पर भी बारिश का पानी जमा हो गया है। मरीज़ों और लाहिकीन को अस्पताल आने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जना अस्पताल के कई कमरों की छतों से पानी टपकने लगा है। आपको बता रहे हैं शहर में मूसलाधार बारिश हुई है और बारिश से अस्पताल भी ज़ेरे आब आ गए हैं। जिना और जनरल अस्पताल के दाखिली रास्तों पर बारिश का पानी जमा हो गया है। मरीज़ों और लाहिकीन को अस्पताल आने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जिना अस्पताल के कई कमरों की छतों से बारिशी पानी टपकने लगा है। आपको अहम खबर के हवाले से बता रहे हैं शहर में मूसलाधार बारिश हुई है और अस्पताल भी ज़ेरे आब आ गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज शहर में होने वाली जो मूसलाधार बारिश है इसकी वजह से शहर के जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं ये भी अक्सर बारिशी पानी की वजह से ज़ेरे आब आ चुके हैं। लाहौर न्यूज़ को जो फुटेज मौसूल हुई है वो जिना अस्पताल और लाहौर जनरल अस्पताल की है। खासकर जिना अस्पताल के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं यहाँ पे 2 से 3 फीट जो पानी है ये खड़ा है, जिसकी वजह से जो मरीज हैं, जो आम शहरी हैं, आमदोरफ्त के लिए उनको शदीद अज़ियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिना अस्पताल के अंदर एमरजेंसी का जो मेन गेट है उसके बाहर भी शदीद पानी है, जिसकी वजह से तकरीबन बारिशी पानी की वजह से जो गेट है ये बंद है और शहरियों को शदीद अज़ियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आने जाने के हवाले से। जबकि इसी जिना अस्पताल की जो आउटडोर वाली साइड है वहाँ पे भी शदीद पानी है। बर्न सेंटर वाली साइड पर भी 2 से 3 फीट जो पानी है वो जमा है, जिसकी वजह से शहरी और जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, अमला है, उसको शदीद अज़ियत का सामना करना पड़ा। इसी तरह लाहौर जनरल अस्पताल के भी एमरजेंसी के बाहर बारिशी पानी है, वहाँ पे भी आमदोरफ्त में डॉक्टर्स दिगर अमले को और साथ मरीजों को, लवाकिन को, खासकर जो पेशेंट एमरजेंसी में आ रहे हैं उनको शदीद अज़ियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। दोनों अस्पतालों की एमरजेंसी के जो इंतजामिया की तरफ से कहा ये जा रहा है कि बारिशी पानी की निकासी आपके लिए तमाम तरह जो मुमकिन इकदाम हैं वो किए जा रहे हैं। अब कुछ ही देर तक जो बारिशी पानी है इसको अस्पताल से निकाल दिया जाएगा। जी, आपको अहम खबर के हवाले से बता रहे थे शहर में मूसलाधार बारिश हुई और मूसलाधार बारिश की वजह से अस्पताल भी ज़ेरे आब आ गए। जिना और जनरल अस्पताल के दाखिली रास्तों पर बारिश का पानी जमा हो गया। मरीज़ों और लाहिकीन को अस्पताल आने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जिना अस्पताल के कई कमरों की छतों से बारिशी पानी टपकने लगा है। जिना और जनरल अस्पताल के दाखिली रास्तों पर बारिश का पानी जमा हो गया है। मरीज़ों और लाहिकीन को अस्पताल आने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जना अस्पताल के कई कमरों की छतों से बारिशी पानी इस वक्त टपकने लगा है। ये मनाज़र हैं जो आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं। शहर में मूसलाधार बारिश हुई है और अस्पताल भी ज़ेरे आब आ गए हैं। जिना और जनरल अस्पताल के दाखिली रास्तों पर बारिश का पानी जमा हो गया है। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी नकासियाब के लिए वासा की मावनत में सरगर्म। नशेबी इलाकों में नकासियाब यकीनी बनाने के लिए सेफ सिटी के खसूसी मॉनिटरिंग सेफ सिटी कैमरों के जरिए वासा को पानी की सूरत हाल की रियल टाइम मालूमात की फराहमी जारी है। मज़ीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब सिटी अथॉरिटी निकासियाब के लिए वास्ते की जो है वो मदद कर रही है और सीसीटीवी की वर्चुअल पेट्रोलिंग और कैमरे के जरिए वास्ते की निकासियाब की जो है वो निशानदेही की जा रही है। बारिश के दौरान नशीबी इलाकों में निकासियाब यकीनी बनाने के लिए सीसीटीवी की खसूसी मीटिंग इस हवाले से जारी है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए वास्ता को पानी की सूरत हाल की टाइम मालूमात जो है वो फराहम की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पानी जमा होने और सिक्योरिटी मसाइल की मुसलसल जो है वो कैमरों के जरिए निशानदेही की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से बड़े पानी की तस्वीर वास्ता को फराहम की जा रही है। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक का बड़ा फैसला। कत्ल के मुकदमे में 100 साल सज़ा पाने वाले मुजरिम की अपील खारिज कर दी गई है। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। दरख्वास्त गुजार सगीर हुसैन 1989 से जेल में कैद हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, अपडेट कीजिएगा। इशफाक से भी राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक का बड़ा फैसला सामने आया है। कत्ल के मुकदमे में 100 साल सज़ा पाने वाले मुजरिम की अपील खारिज कर दी गई है। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है।
قتل کے مقدمے میں 100 سال سزا پانے والے مجرم کی اپیل خارج کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق کا یہ بڑا فیصلہ ہے جو سامنے آیا ہے۔